my YouTube channel. Today here I will teach you how to have conversation on simple future tense. It is significant topic for speaking English. Now it will help you how to ask question to someone whenever you are having conversation to someone. Now how to have conversation on simple future tense. Now there are two persons. One is Ram, another is Shyam. One is Ram, another is Shyam. Both are playing conversation on simple future tense. Firstly, we are taking here yes no question. Here we are taking firstly yes no questions. Now Ram asked question to Shyam. Dialogue 1. Will you crack your exams? Ram asked question to Shyam, will you crack your exams? Its Hindi meaning will be, क्या आप अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे? श्याम says, oh yes. I will crack my exams. Oh yes, I will crack my exam. Its Hindi meaning will be, मैं अपने एग्जाम क्रैक करूंगा. If he does not want to give whole reply, he will use his contraction form. यदि यह पूरा रिप्लाई यूज नहीं करना चाहता तो ये इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी, ब्रीफ फॉर्म में भी इसको रिप्लाई कर सकता है. He will say, oh yes, I will. Oh yes, I will means I will crack my exam. Meaning यही होगी, oh yes, I will. आप इतना बोल देंगे, that is enough for replying I will. या तो आप इसका कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे I don't L means I will. I will का कॉन्ट्रैक्शन I. In case of no, Shyam says, oh no. I will not crack my exams. Oh no, I will not crack my exam. Its Hindi meaning will be, मैं अपने एग्जाम क्रैक नहीं करूंगा. Even Shyam says in brief form, इसको यह brief form में भी बोल सकता है. He will say, oh no, I won't. Oh no, similar, oh no, I won't. Simple आप बोल दे I will not, even you will say I won't. That is contraction form of I will not. Now here again Ram asked question to Shyam.
डायलॉग टू, डायलॉग टू, will she become a doctor, doctor in future? Will she become a doctor in future? Its Hindi meaning will be, क्या वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी, क्या वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी? Shyam says, oh yes. Shyam says, oh yes. She will आप या तो इतना कहते हैं oh yes she will ब्रीफ फॉर्म में, ये रिप्लाई के लिए इनफ है। चाहे आप इसका कंप्लीट रिप्लाई भी दे सकते हैं, आप इसका होल रिप्लाई भी दे सकते हैं, या फिर आप इतना कह देंगे she will, that is enough for replying for that question। इस क्वेश्चन के लिए इतना रिप्लाई इनफ है। चाहे आप पूरा कंप्लीट देना चाहें तो पूरा भी दे सकते हैं ओ यस, आप इतना बोल दें she will तक, या फिर आप फिर बोल दें she will become a doctor in future। She will become a doctor in future। Its Hindi meaning will be, वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी, वो फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी। या तो आप सिंपल बोल देते she will, both are fine। मैं आपको अलग से बता देता हूँ, आप इतना फिर बोल सकते she will, in case of yes, oh yes she will, or object you make its contraction form she, that is contraction of she will। Now next Shyam says oh no, oh no, she will not become a doctor in future। She will not become a doctor in future। She will not become a doctor in future। Its Hindi meaning will be, वो फ्यूचर में डॉक्टर नहीं बनेगी, वो फ्यूचर में डॉक्टर नहीं बनेगी। इवन श्याम विल से ओ नो, ब्रीफ में यह बोल सकता ओ नो सी विल नॉट, ये ब्रीफ फॉर्म कैसे यूज करेगा हो यार, और नो सी विल नॉट, इवन सी वॉन्ट, बहुत आर सिमिलर मीनिंग। यहां मैं बता दे रहा हूं सी विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन ये होगा शी वॉन्ट। आप चाहे तो कंप्लीट रिप्लाई कर दें या फिर ब्रीफ फॉर्म का यूज कर लें, पर एज पर मी आप इस ब्रीफ फॉर्म को ज्यादा यूज करेंगे, दैट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर रिप्लाइंग इन केस ऑफ यस नो क्वेश्चन। you will prefer brief form to replying yes no question। आप सिंपल बोल देंगे she won't, मीन्स वो डॉक्टर नहीं बनेगी। चाहे आप इसे बोल दें चाहे इसे बोल दें, मीनिंग सेम है, आपकी चॉइस है आप क्या यूज करना चाहते हैं, बट आप कॉन्ट्रैक्शन को ज्यादा यूज करेंगे और ब्रीफ फॉर्म को यूज करेंगे यस नो के केस में। राम आस्क क्वेश्चन टू श्याम, डायलॉग 3, now here we are taking negative question। now here we are taking negative question, we also called yes no question। इस नेगेटिव क्वेश्चन को हम yes no question भी कहते हैं, इन या तो फिर नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं आप। ये आपका होता है इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं स्पोकन टर्म में। अभी आप देख रहे होंगे
या मैं इंट्रो प्लस नेगेटिव का एग्जांपल लूंगा, सो लुक केयरफुली। नाउ राम आस्क क्वेश्चन टू श्याम, डायलॉग 3, will you not gather public there? Ram asked question to Shyam, will you not gather public there? Will you not gather public there? Its Hindi meaning will be, क्या आप वहां पब्लिक इकट्ठा नहीं करेंगे? क्या आप वहां पब्लिक इकट्ठा नहीं करेंगे? अब इस सेंटेंस को मैंने, ये आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है, वी कॉल इट नेगेटिव क्वेश्चन एंड इवन यू कैन आल्सो कॉल यस नो क्वेश्चन। आप इसको नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं, यही आपका इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। नाउ अभी सिमिलर सेंटेंस आई विल कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। इस सिमिलर सेंटेंस को मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म को यूज करके भी बनाऊंगा। मीनिंग विल बी सेम फॉर बोथ सेंटेंस। ये नोट विल के साथ में कंबाइन होगा, want you gather public there. Want you gather public there. Want you gather public there. Its Hindi meaning will be, क्या आप वहां पब्लिक इकट्ठा नहीं करेंगे? क्या आप पब्लिक वहां इकट्ठा नहीं करेंगे? मीनिंग आप देख रहे होंगे दोनों की सेम है। ये आपकी चॉइस है, चाहे आप इस तरीके से क्वेश्चन की आस्किंग कर लें या फिर इस तरीके से, चाहे आप फर्स्ट को यूज करें चाहे सेकंड का, मीनिंग सेम होगा। ये आपकी चॉइस है, आप किसे प्रेफर करना चाहते हैं। एज पर मी यू विल फॉलो सेकंड सेंटेंस। आप सेकंड वाले को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यदि आप इस सेकंड वाले को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट आप दोनों कर सकते हैं जो आपको प्रेफर लगे। इसे कर लें या फिर इसे, बट आप सेकंड वाले को ज्यादा फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। श्याम सेज yes, yes, I will gather public there. Oh yes, I will gather public there. Oh yes, I will gather public there means मैं वहां पब्लिक इकट्ठा करूंगा। हाँ, मैं वहां पब्लिक इकट्ठा करूंगा। नेक्स्ट, यदि आप कंप्लीट रिप्लाई नहीं करना चाहता, he will say oh yes, I will, simple, oh yes, I will. That is enough for reply. Oh yes, I will. You will make its contraction form oh yes, oblique oh yes, I. We call it its contraction form. Next, Shyam says oh no, no. In no के केस में Shyam says oh no, I will not gather public there. या तो ऐसा कह दे या फिर कॉन्ट्रैक्शन में बताए तो आप लोगों को। oh no, Shyam says oh no, I will not gather public there. या तो ये कंप्लीट हो जाएगा oh no, I will not gather public there, मैं वहां पब्लिक इकट्ठा नहीं करूंगा। या तो ये सिंपल बोल देगा, ब्रीफ फॉर्म है oh no, I will not, oh no, I will not। इतना इनफ है रिप्लाई के लिए। That is why I am telling it again and again। आप ब्रीफ का यूज करेंगे oh no, I will not, that is enough for reply। या आप I will not का कॉन्ट्रैक्शन बना लेंगे oh no, I want, oh no, I want। Both can be used for giving reply। आप इसे प्रेफर कर लें, that is enough for getting reply। आपको जो प्रेफर लगता है आप कर लें। कंप्लीट बोल दें, चाहे ब्रीफ में बोल दें, चाहे कॉन्ट्रैक्शन में बोल दें, ऑल आर सिमिलर।
Now again Ram asked question to Shyam. Ram asked question to Shyam. कुछ बोले? दिक्कत है कुछ? Dialogue 4. Now here again we are taking negative question. Want I park my bike here? Want I park my bike here? Want I park my bike here? Its Hindi meaning will be, क्या मैं यहाँ अपनी बाइक पार्क नहीं करूंगा? क्या मैं यहाँ अपनी बाइक पार्क नहीं करूंगा? श्याम says, oh yes, आप करेंगे. Oh yes, oh yes, oh yes, you will. He will say, oh yes, you will. ये ब्रीफ में हो गया. यदि ये इसको कंप्लीट रिप्लाई करना चाहे तो ये बोलेगा, oh yes, you will park your bike here. Oh yes, you will park your bike here. या फिर इधर he will say, oh yes, you will. That is enough for reply. आप you will का कॉन्ट्रैक्शन ही बना सकते हैं. You will. Shyam says, oh no. Oh no. You will not. या तो इतना बोल दे, ओ नो यू विल नॉट. ये भी इनफ है रिप्लाई के लिए. रिप्लाई करने के लिए इतना इनफ है. या तो फिर ये पूरा कंप्लीट ही बोल सकता है, ओ नो यू विल नॉट पार्क योर बाइक हियर. ओ नो यू विल नॉट पार्क योर बाइक हियर मीन्स आप यहाँ अपनी बाइक पार्क नहीं करेंगे, जो कि इसकी हिंदी मीनिंग है. आप इतना बोल देंगे, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है. और आप इसका कॉन्ट्रैक्शन बोल दें, ओ यस, ओ नो यू वांट. Oh no, you want. अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने आपको यस नो क्वेश्चन बता दिए, कैसे फ्रेमिंग करनी है यस नो क्वेश्चन की और कैसे क्वेश्चन को आस्किंग करना है when two person are playing conversation to each other. Similarly, here we have taken negative question. Negative question is intro plus negative sentence. Here we have taken intro plus negative question, how to ask question to someone and how to give him reply while having conversation. Means आप क्वेश्चन कैसे करेंगे नेगेटिव क्वेश्चन में, ये मैंने बता दिया. आप उसे जवाब कैसे देंगे, यस के फॉर्म में और यस में वही बता दिया, और नो के फॉर्म में आप उसे कैसे देंगे. यहाँ पे मैंने आपको पूरा रिप्लाई करना ही बताया, पूरा जवाब देना ही बताया. आप पूरा जवाब देना चाहें तो बेटर है, ना तो आप ब्रीफ फॉर्म को यूज कर सकते हैं. आप ज़्यादा ब्रीफ फॉर्म को यूज करें जब आपके क्वेश्चन यस नो के फॉर्म में हो या फिर नेगेटिव क्वेश्चन के फॉर्म में. आप ब्रीफ को यूज करेंगे, इतना आपके लिए सफिशिएंट है जवाब देने के लिए. जनरली नाउअडेज पीपल आर यूजिंग ब्रीफ रिप्लाई टू समवन. आजकल लोग ब्रीफ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कोई कंप्लीट नहीं बोलता तो आप ब्रीफ ही यूज करेंगे. नेगेटिव क्वेश्चन अगेन बता रहा हूँ, ये इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इसे हम नेगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं. नाउ we are going to look about WH question. अब हम WH क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं. WH क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन की आस्किंग कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे पूछना है. Now here we are looking WH क्वेश्चन. यहाँ हम WH क्वेश्चन देख रहे हैं. अब WH क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को आस्क करेंगे. Now here again Ram asked question to Shyam. Ram asked question to Shyam. राम श्याम से क्वेश्चन करता है. डायलॉग 5. Now I'm asking question. When will you narrate him fairy tale?
Ram asked question to Shyam, when will you narrate him fairy tales? When will you narrate him fairy tales? Its Hindi meaning will be, आप उन्हें परियों की कहानी कब सुनाएंगे? आप उन्हें परियों की कहानी कब सुनाएंगे? Tales means story, fairy means परी. Shyam says, today I will narrate him because they are because he is interested in it. Today I will narrate him because he is interested in it. Today I will narrate him because he is interested in it. Its Hindi meaning will be, आज मैं उसे सुनाऊंगा, आज मैं उसे सुनाऊंगा क्योंकि वह इसमें इंटरेस्टेड है. आज मैं उसे सुनाऊंगा क्योंकि वह उसमें इंटरेस्टेड है. अभी आप लोग देख रहे होंगे ये जो सेंटेंस है आपका, ये आपको देखा यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्यूचर में. इसके बाद बिकॉज से मैंने जो सेंटेंस लिंक किया है ये आपका प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में एंड फ्यूचर में, व्हाट इज पैसिव एनीथिंग एल्स. मींस WH केस में आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप कितने पॉइंट एक्सप्रेस करना चाहें, दैट इज योर चॉइस, एंड यू विल यूज एनी टेंस टू डिफाइन योर आंसर. दैट्स ऑल. आपको कोई भी पॉइंट को अपने आंसर को डिफाइन करने के लिए यूज करना है. इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और टेंस कोई भी हो सकता है इन केस ऑफ WH में, क्योंकि यहाँ पे आप अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट इज रीजन बिहाइंड इट. नाउ डायलॉग 6. Ram asked question to Shyam, where will I work? Ram asked question, where will I work? Where will I work? Its Hindi meaning will be, मैं कहाँ काम करूँगा, मैं कहाँ काम करूँगा. Now Shyam says, you will work in BPO nowadays. You will work in BPO nowadays. You will work in BPO nowadays. Its Hindi meaning will be, आजकल आप BPO में वर्क करेंगे. आजकल आप BPO में वर्क करेंगे. ये अपने और भी थॉट को एक्सप्रेस कर सकता है, बिकॉज यू हैव बीन, ये अपने थॉट को और भी एक्सप्रेस कर सकता है बिकॉज यू हैव बीन सेलेक्टेड देयर फॉर डूइंग जॉब इन दैट ऑफिस. नाउ हियर अगेन राम आस्क्ड क्वेश्चन टू श्याम. Ram asked question to Shyam. Dialogue 7. What will she cook and dinner? Ram asked question, what will she cook in dinner? What will she cook in dinner? Its Hindi meaning will be, वह डिनर में क्या पकाएगी,
वो डिनर में क्या पकाएगी। श्याम से शी will cook rice in dinner because today you ordered food it. She will cook rice in dinner because today you ordered do it. She will cook rice in dinner because today you ordered to do it. Its Hindi meaning will be वो डिनर में राइस पकाएगी क्योंकि आज आपने उसको इसे करने का ऑर्डर दिया था। वो डिनर में राइस पकाएगी क्योंकि आज आपने उसको इसे करने का ऑर्डर दिया था, ऑब्लिक दिया था। अभी आप देख रहे होंगे ये यहां तक की कंडीशन क्या आपकी, सी टू डिनर रेड्यूस इन योर सिंपल फ्यूचर टेंस एंड बिकॉज से ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में मीन्स आप WH पे किसी भी टेंस को यूज कर सकते हैं आपके व्यूज को एक्सप्रेस करने का। यही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है टू टेल यू, आपको बताने का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। आप देख रहे हैं यहाँ सिंपल फ्यूचर है, यहाँ से आपका टेंस चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इंसिडेंट पास्ट की थी। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इन पास्ट टेंस। आप इसमें और भी श्याम अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकता एज पर दैट विल बी इन अकॉर्डिंग टू टेंस एंड कंडीशन। अगेन राम आस्क्ड क्वेश्चन टू श्याम, dialogue it how will you teach him physics? How will you teach him physics? Ram asked question to Shyam, how will you teach him physics? Its Hindi meaning will be आप उसे फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे, श्याम says I will teach him physics by making do practical in lab. Sorry. Shyam says, I will teach him physics by making do practical in a lab. I will teach him physics by making do practical in a lab. Its Hindi meaning will be मैं उसे लैब में प्रैक्टिकल करवा के फिजिक्स पढ़ाऊंगा। Now Ram asked question to Shyam. Dialogue 9. Why will I get from stipend from there?
Ram asked question to Shyam, why will I get handsome stipend from there? Its Hindi meaning will be, मुझे वहाँ अच्छा वेतन क्यों मिलेगा, मुझे वहाँ अच्छा वेतन क्यों मिलेगा. Shyam says, because you are doing a great job. क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, because you are doing great job, आप अच्छा काम कर रहे हैं, that is why you will get handsome stipend. ये और भी ऐड करना चाहे तो बोल सकता है, that is why you will get handsome stipend from there. If you are doing great job, that is why you will get handsome stipend from there. Its complete Hindi will be, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आपको वहां से हैंडसम स्टाइपेंड मिलेगा. अभी मैं आप लोगों को वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, WH क्वेश्चन में आपकी कोई ब्रीफ में आंसरिंग नहीं हो सकती. मैं जब भी आपको WH क्वेश्चन में होगा तो आप उसको कंप्लीट रिप्लाई करेंगे या फिर आप पूरा होल रिप्लाई करेंगे. इसमें कोई ऐसा ब्रीफ का केस नहीं है कि आप ब्रीफ में उनको रिप्लाई कर दें. ब्रीफ का केस ओनली यस नो क्वेश्चन में होता है और नेगेटिव क्वेश्चन में होता है कि आप सेंटेंस को ब्रीफ फॉर्म में आंसर करने के लिए रिप्लाई कर सकते हैं. WH पे ऐसा कोई रोल नहीं है किससे कोई शॉर्ट फॉर्म है तो मैं बता दूं, देयर इज नो रोल टू गिव हिम रिप्लाई. नाउ राम आस्क्ड क्वेश्चन टू श्याम, डायलॉग 10 and having conversation. Now and I have also told you yes no question and you have to practice more or more sentence to ask someone and you will have conversation with your friend, colleagues, friends, mate, parents, siblings, so on, and it will help you for improving your communication skill. So if you like my video, please share,